Detailed investigations have been carried out when Ijaz Mallah was taken into custody, and he has confessed to his crime. We will play a small video of his, no, we will play the video first. We will play a video of his confession. मेरा नाम है इजाज़ मल्ला और अब्बू का नाम है रियाज मल्ला और हमारा काम है दरिया के धंधा करना मच्छी का। हमारा तालुका शाहबंदर और ज़िला ठट्टा में हम रहने वाले हैं। हमारा पीछा है मच्छी मारने का धंधा, शिकार करने का मच्छी का, और हमारे बचपन से ही मच्छी मारते हैं और यही शिकार हमारा है, यही हम काम करते हैं। हमारे सत्य पीढ़ियों से ही यही काम कर रहे हैं मच्छी का। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। तो उसने मुझे ये भी बोला और उसके बाद हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। तो हमने डर की वजह से, एक तो जेल का डर था और उसने इनाम के लिए बात किया, तो मैंने बोला हामी भर दी तो मुझे आप छुड़ाएं। तो उसने मुझे छुड़ाने के बाद पहले उसने मुझे कोई चीज़ें बताई। उसने बोला ये सामान लेके आना, और कोई रेंजर्स की वर्दी है या पोस्ट गार्ड वाला रेंजर्स की वर्दी है तो नेवी का और आर्मी का वर्दी ले। और उसके बाद जो है हमारे को 3 सुमें चाहिए रोंग की, वो लेके आना है, और 3 चाहिए जो मोबाइल का दुकान है, दुकान का जो बिल होता है वो 3 बिल चाहिए हमारे को। और उसके बाद सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ, और बाकी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना है। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। इकट्ठे करने के बाद हमने वो खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर था अशोक कुमार, उसको मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी, और उसके बाद वो सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया। तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। As you've seen very clearly that he has made a confession, and these items were recovered from his custody when he was arrested by Pakistani security agencies. Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty. And for the safety of our homeland, they are vigilant and ready to hatch any conspiracy. So I think this particular activity could be linked to the naval exercise being carried out by the Indian Navy in the Kutch or Gujarat area, the Bhoj area, and maybe this was a conspiracy to link this activity to those exercises. This is one possibility that could be there. Secondly, I think that after such humiliation, they have always resorted to such propaganda, and we are placing this evidence in front of the entire world. So India's nefarious designs can be exposed and the people can know what kind of conspiracies they are involved in. And let me also show you that we have not only apprehended this person, recovered these items, but legally his statement is on record and we are placing it in front of the entire world. As you know, that the Indian media has always resorted to lies and propaganda, and whenever there are elections approaching, they try to prepare for those elections well in advance. So this is the kind of propaganda that they are involved in, and this is a big success for the Pakistani security agencies, for the Pakistani law enforcement agencies,
that we foiled this conspiracy, hatched this conspiracy, and placed it in front of the entire world to see that what kind of activities the Indian state and the Indian intelligence agencies are involved in. And as you saw, I think after Kulbhushan Yadav being captured, they are now resorting to common fishermen because they can't risk sending their commissioned officers in the guise of businessmen. And Kulbhushan Yadav being in Pakistan custody is a big testament to the Indian activities of spying, of conspiracies. And now, I think after this fisherman being caught, maybe they will now lower their level even further because their capacity will no longer be there to penetrate inside Pakistan and to carry out such activities. I will now request my honorable colleague, Minister of State for Interior Talal Chaudhary Saab, to address the local media ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी इससे बखूबी तौर पर आगाह किया जा सके. I thank you, ladies and gentlemen, and my request would be that at conclusion, if we could keep the questions just related to this particular activity. 4 गुना बड़े दुश्मन को हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने शिकस्त फाश दी है. आप यहाँ से बैठ के हमने पाला पोसा, आपके इतने पनाह गजीनों को हमने यहाँ पे अपने खर्चे के ऊपर उनकी मेहमान नवाजी की. आज आप इस्लामाबाद का इनको तो नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए, इनकी कैपेसिटी नहीं है. और दूसरा ये जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक माशरा जो अपनी ख़वातीन से खौफज़दा हो, उनको घरों से बाहर ना निकलने देता हो, घुटन का माहौल पैदा करता, उनको एजुकेशन का राइट ना देता, उनको तो वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए. जी ये वजीर साहब आप करें. थैंक यू मिनिस्टर साहब. अला नूर वजीर हूँ मशरक पेशावर ग्रुप से. वजीर साहब का थैंक यू. एजाज मल्ला साहब गिरफ्तार हुए, फिर वापस आए, फिर उसने चीज़ें ली, तो क्या हमारी जो एजेंसियाँ है उसने पहले से इनको इनकाउंटर क्यों नहीं किया है, मतलब गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और साथ साथ तलाल चौधरी साहब से मेरा सवाल है कि आपने बात की कि हमारा मुल्क किसी मतलब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, तो हाफिज़ सईद या दीगर के हवाले से भारत का जो मौक़िफ़ है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल क्लैरिटी है और इंडियन प्रोपेगेंडा इस जो मई में एक कशीदगी हुई उससे पहले भी कहा गया कि यहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं. इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इंटरनेशनल मीडिया के साथ हेलीकॉप्टर में जाने को तैयार थे सुबह, जब उससे पहले इन्होंने हमला किया. हम आज फिर ऑफर करते हैं दुनिया में किसी भी इंडिपेंडेंट मीडिया को कि किसी एक जगह की निशानदेही करें. पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, सॉवरेन स्टेट है, दूसरों की सॉवरेनिटी की हम फर्ज समझते हैं कि एहतराम करें और हमारी ज़मीन कोई भी रियासत या गैर रियासती इदारा यहाँ ऑपरेट नहीं कर रहा जो किसी के खिलाफ यहाँ से हमला आवर होता हो